خلق کی جمع آتی ہے اخلاق. تو اردو میں جو اخلاق ہے نا یہ عربی سے آیا ہے, تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے. کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. اور واحد اس کی کیا ہے, سنگولر کیا ہے, خلق. تو خلق میں نے بتایا تھا یہ خلق کہتے ہیں پیدا کرنا, تخلیق پیدا کرنا, خلق پیدا کرنا, خالق پیدا کرنے والا. خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو, وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو, ڈیزائن کیا گیا ہو. تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے. عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں, نیچر کو, طبیعت کو, جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا ان کو خلق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں. کیا مطلب, آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں, جس میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, جیلسی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے, بولو بھائی, اچھا ہے. بزدلی نہ ہو, کنجوسی نہ ہو, لالچ نہ ہو, بے وفائی نہ ہو, ناشکری نہ ہو, رحم ہو اس کے اندر, کمزور پہ ترس کھانے والا ہو, کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں. آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے, صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. تھینک یو کرتا رہے سارا دن, اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. اب دیکھو جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق, ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق ہوں, این ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے. لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے, مسکرا کے بات کرتا ہے, کسٹمر نہ چھوٹے. تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کے بات کرے. اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے ہیں, اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی, ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی. تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے. کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی, فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو, پتلی گلی سے نکلو. تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا. حقیقت ہے, میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا, کہیں آپ کہو گے آپ نے چھیڑ کے دیکھا ہے, لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے. ایسے لوگ, ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں, تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں, تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے, غصہ نہیں کر رہی. اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے, تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں, لیکن اس کی بیس کیونکہ اچھی نہیں ہے, اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے, غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے, یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا, غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو. غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا, یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا, چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے, دوسرے کی بہو بیٹیوں کو ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے
खिलाफ है। इंसान अपने बारे में सोचता है तो उसको गैरत आती है, तो गैरत ही खत्म हो जाए तो फिर तो सारे दिन थैंक यू करता फिरेगा वो, कुछ भी कर लो थैंक यू, मुस्कुराएगा। तो हाँ, अगर यही एयर होस्टेस जब घर में अपनी माँ से बात करे बहुत मीठे लहजे में, जिस माँ से इसको तनख्वाह नहीं मिलनी, बाप से बात करे मीठे लहजे में, तो फिर हम कहेंगे ये बाय नेचर ही क्या बन गई है, अच्छी बन गई। फिर बेशक लोगों से भी अच्छे स्टाइल में बात कर ले तो हम कहेंगे यहाँ तनख्वाह मिल रही है लेकिन वहाँ जहाँ नहीं मिल रही वहाँ भी अच्छे अखलाक से बात कर रही है, तो इसका मतलब ये बाय नेचर क्या है, अच्छी है। अब देखो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़वातीन को हुक्म दिया कि जब किसी नामहरम मर्द से बात करो फला तख़ज़अन बिलक़ौल, तो नरम अंदाज में बना बना के बातें ना किया करो। फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में शहवत की बीमारी है ना उसका दिल तुम्हारी तरफ माइल होगा। तो अल्लाह नहीं चाहते कि शौहर का दिल उसकी बीवी के अलावा किसी और तरफ जाए। अगर तुम उसकी बीवी लगती हो फिर तो बहुत बना बना के बातें करो, लेकिन अगर बीवी नहीं लगती तो या तो बीवी बन जाओ इसकी, क्या ख्याल है भाई, या तो बन जाओ भाई, अगर इतना अच्छा लग रहा है तो बीवी बन जाओ। फिर जिस तरह स्टाइल में बात करो, जितना मीठे लहजे में बात करोगी उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। भाई तुम्हारा मियाँ है तो तुम उसकी बीवी हो, जितनी मोहब्बत जिंदगी गुजारो। लेकिन ना बीवी बनना है, ना तुम उसकी बीवी हो ना बीवी बन रही हो, फिर खामखा में उससे ऐसे नरम लहजे में बात करना, स्टाइल घुमा घुमा के, कुरान ने इस अमल से साफ तौर पर मना किया है। ये अच्छे अखलाक नहीं है, ये गैरत ना होने की दलील है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, ये इसकी दलील है कि आप में गैरत नहीं है। ये नहीं कह रहा इस्लाम के उससे गंदे तरीके से बात करो। बाज लोग ये सिखाते हैं खवातीन को कि जब किसी मर्द से बात करो तो ऐसी तल्ख आवाज में डर जाए वो, तो वो फिर ये ऐसी चीज है ना कि जो जिस पर अमल मुमकिन नहीं है। कुरान ने ये नहीं कहा कि उससे बदतमीजी से बात करो, कोई नामहरम का फोन आए तो बदतमीजी से बात करो। हमारे उस्ताद ने कहीं बयान किया खवातीन में कि ना वो बड़े कड़क थे ना, तो उन्होंने बयान किया कि जब कोई नामहरम से बात करो तो ऐसे करख लहजे में बात करो कि सामने वाला समझे कि चुड़ैल बात कर रही है। तो एक आदमी ने मुझे बताया, मैंने इनकी किसी मुरीदनी को किसी बात कोई फोन किया होगा, घर में कोई मसला होगा, कोई किसी से बात करनी, तो उन्होंने फोन उठा के ऐसे बदतमीजी से बात की, मैं डर गया। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, कोई मैं पता नहीं कोई चोर हूं या मैं क्या हूं। तो ऐसा भी नहीं है, नरम लहजे में बात ना करें। जैसे बाज खवातीन जो है ना वो ऐसा स्टाइल होता है उनका कि ये जो कमारे छड़े छाट है ना, ये स्टाइल भाई आशिक हो जाते हैं हकीकत है। वो हेलो ऐसे स्टाइल से निकालती है ना, जब फोन उठाएंगी, भाई घर में फोन उठा लिया खवातीन, हेलो ऐसे बोलेंगी कि ये फोन पे ही चिपक जाएगा, खड़ा छोड़ेगा ही नहीं फोन, ये दोबारा बस बातों में लग जाएगा। तो इन चीजों से मुआशरे में फसाद पैदा होता है, पाकीज़ा मुआशरा वजूद में नहीं आता। अल्लाह ने एक निजाम रखा है भाई, निकाह, बस औरत तक पहुंचने का एक जरिया है, वो क्या है, बीवी बना के उसकी टेंशन उठा लो, सारी जिंदगी का खर्चा उठाओ, उसके बच्चों का खर्चा, जहेज में साले भी मिलेंगे, ससुर भी मिलेंगे, सास भी मिलेंगी, ये सारी टेंशन उठा सकते हो रिश्तेदारी की तो ठीक है, नहीं तो किसी भी नामहरम से किसी भी किस्म की दिलचस्पी लेना, लज्जत हासिल करना, चाहे उसकी आवाज के जरिए हो, चाहे उसकी तस्वीर के जरिए हो, चाहे उसके लिबास के जरिए हो, किसी भी, चाहे वो हकीकत में कोई औरत हो या उसकी तस्वीर हो, डिजिटल तस्वीर हो या प्रिंटेड तस्वीर हो, कोई भी जरिया हो, औरत से मर्द लज्जत हासिल नहीं कर सकता। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को देखने जो लज्जत की नीयत से देखते हैं, इस अमल को आंखों का जिना करार दिया है कि आंखें क्या कर रही हैं, जिना कर रही हैं। जो औरत से बात करके लज्जत हासिल करेगा, लज्जत के लिए बातें कर रहा है, उससे मजा आ रहा है उसको, तो इस अमल को जबान का जिना कहा गया। जबान मजे ले रही है, बातें सुन के लज्जत हासिल करेगा, तो इस अमल को कान का जिना करार दिया गया है। तो ये लिबरल जो दीन से दूर है ना, ये उन लोगों के जो है ना तमाशे हैं कि गर्लफ्रेंड्स भी रखी हुई हैं और टिकटॉक की शक्ल में जो बेहुदगी माशरे में फैलाई जा रही है। ये लोग किसी बूढ़ी औरत से बात करने में तो कभी मुख्तसर बात करते हैं उससे, जो बूढ़ी औरत से बात हो रही है, इन शॉर्ट 2 मिनट में बात खत्म। अम्मा से बात करेंगे तो 2 मिनट में अब बात क्या, टू द पॉइंट बात होगी। बल्कि अब तो यहां तक बेगम से भी बात टू द पॉइंट करते हैं। बेगम क्या पका है, पाए पके, अच्छा ठीक है रख देना, खा लूंगा, बस। इससे ज्यादा बोलो भाई, टाइम ही नहीं देते घर में, औरतें बेचारी परेशान हैं,
मियाँ जब घर में आता है तो बस सोने के लिए आता है और सुबह ऑफिस चला जाएगा उठ के, बस सोना और वॉशरूम, बैतुल खला जाना होगा तो घर में, क्योंकि हमारे पब्लिक वॉशरूम अच्छे नहीं होते, साफ सुथरे नहीं होते ना, तो वॉशरूम के लिए घर में जाएगा और सिर्फ खाना खाने के लिए बस, और सोने के लिए। तो वैसे ऑफिस में देख लो, साथ में कोई बैठी हुई है तो वो उससे एक बात पूछेगी तो पूरी गर्दान जवाब में, पूरा तफसील से जवाब दिया जाएगा। वो बास खवातीन का भी यही आलम है, मियाँ से बात नहीं कर रही, भाई बैठो चलो। आजकल तो ऐसे मियाँ मार्केट में शार्ट हैं तो बीवियों को टाइम दें, लेकिन आपको ऐसा मियाँ मिल गया, इतना नेक शरीफ इंसान जो आपसे आके बातें कर रहा है, इतना नेक आदमी, मैं कहता हूं इसको तो, ये तो इससे तो दम करवाया करो। हकीकत है, जो घर में आगे बेगम से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, वो गपशप लगा रहा है। तो ऐसा मियाँ किसी औरत को इस जमाने में मिल जाए तो दम करवाए वो उससे कि बहुत नेक आदमी। तो आपको ऐसा मियाँ मिल गया तो आपको तो कदर करनी चाहिए भाई, आप भी बैठ के गपशप लगाएं उसके साथ कि भाई इतना अच्छा मियाँ। तो आप क्या कर रही हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से, वो तमीज से बात कर रहा है, आपने फिर गिले शिकवे, हर वक्त गिले शिकवे, हर वक्त गिले शिकवे। वो यूं हुआ था, वो फड्डा हो जाता है बैठे बैठे। क्या हो जाता है, बात मोहब्बत से शुरू हुई थी, उल्टी सीधी ऐसी कचूमड़ बना के ना उसका मूड देखा भाई। शिकायतें करने का भी एक टाइम होता है ना, वो मूड देख के बात करो, गुस्से में आया हुआ है, कहीं बाहर से बॉस से लड़के आया है। तो मान लिए तो हमारा एक सब घरों का एक ही जैसा माहौल है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। फड्डे मड्डे सभी में चल रहे हैं आजकल, मार्केट में 2-4 घर ही ऐसे बचे होंगे जहां फड्डेबाजी ना हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अखलाक यानी तमीज से बात का सबसे बड़ा मिसदाक वालिदैन, क्योंकि वालिदैन से आप अगर मुस्कुरा के बात कर रहे हो तो ये अंदर से अच्छे होने की दलील है। भाई वालिदैन को नचोड़ लिया आपने, सारी जिंदगी उनसे फायदे उठा लिए, अब कोई फायदा आप उनसे नहीं उठा सकते, अब आप उनके सामने झुकते हो, अब आप उनसे मोहब्बत से बात करते हो, तो ये आपके अंदर से अच्छे होने की दलील है। क्योंकि ना दुनिया देख रही है आपके इस रवैये को, इस पे सिर्फ सवाब मिल रहा है आपको और कुछ भी नहीं मिल रहा। ये भी नहीं कि ऑफिस में कोई तरक्की हो रही है, कोई दर्जात बुलंद हो रहे हैं ऑफिस में, तनख्वाह डबल हो जाएगी। भाई अब्बा से बहुत, उस दिन मैंने देखा बहुत तमीज से बात की इसने अपने अब्बा से, तो अब इसकी तनख्वाह 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी। कुछ भी नहीं होता। तो ये इस मौके पर जो आप बात करेंगे ना मोहब्बत से, ये क्या कहलाएंगे, अच्छे अखलाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अखलाक की हकीकत को जानते थे ना, अल्लाह ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी आप बेहतरीन अखलाक पर हैं, यानी बहुत अच्छे अखलाक हैं आपके। तो आपके अखलाक का बहुत अच्छा क्या कि आप बाय नेचर बहुत ही अच्छे हैं। तो बाय नेचर बहुत अच्छे होने का नतीजा क्या निकला कि आपके अखलाक सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छे थे। हम लोग अखलाक देख रहे होते हैं कस्टमर के साथ, दोस्तों के साथ, यार बड़ा अच्छा ग्रेट आदमी है, बहुत अजीम इंसान है यार। वो भाई सबसे पहले देखो कि अम्मा के साथ कैसा है, अब्बा के साथ कैसा है, दादा के साथ कैसा, नानी के साथ कैसा, नाना के साथ कैसा, उनकी कितनी खिदमत कर रहा है, बीवी के साथ कैसा, बच्चों के साथ कैसा। घर में आता है चंगेज खान बनके, घर में जैसे ही आता है बच्चे कांपना शुरू करते हैं, अब्बा आ गए। अब अब्बा क्या करेंगे, घर में आते ही बच्चे क्या करते हैं, जब बाप घर में आ रहा है ना और बच्चे खुश होने के बजाय परेशान हो रहे हैं, तो ये नाकाम बाप होने की अलामत है। ये बाप क्या है, ये नाकाम बाप। ये घर थाना है जिसमें एसएचओ साहब के आते ही मातहत सारे एकदम जो है ना वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं ना। थानेदार कोई आता है सब भागते हैं ना, इधर जिधर भी चोर हैं। सही है ना। उन भाई को बहुत हंसी आ रही है, मुझे उनको देख के हंसी आ रही है। अच्छा, मजाक कर रहा हूं, नाराज नहीं होइएगा। तो कोई ज्यादा हंस रहा हो, मुझे अच्छा लगता है वो देख के। वो इसलिए अच्छा लगता है कि उस पर बात ना भरपूर तरीके से असर कर रही होती है, तो उसका असर मेरे ऊपर भी पड़ता है कि यार कम से कम ये दिलचस्पी से सुन रहे हैं। और जो ऐसे बुत बन के बैठा हुआ हो ना रोने की बात पे ना रो रहा है, ना हंसने की बात पे हंस रहा है, तो आदमी कहता है तुम्हें बयान सुनने के लिए जरूरत क्या थी आने की, यार जरूरत क्या थी आने की। वो मैंने लतीफा सुनाया था ना 2 हफ्ते पहले, बयान किया खवातीन शादी में जाने से पहले पूरे डिस्टेंपर के डब्बे खाली करती हैं। तो यहाँ कोई बैठ के जोर से किसी को हंसी आई, तो वो मैं अपने बयान में नीचे कमेंट देख रहा था, एक आदमी ने उस पर लिखा, मैं जो ना हंस के लेट गया जमीन पे। तो हंसने की बात पे हंसे, रोने की बात पे रोए। और यहाँ कोई हम हंसाने के लिए तो बैठे नहीं है, ये तो एक असल जो पैगाम होता है ना वो होता है। अगर ये सिर्फ हंसने हंसाने की महफिल हो फिर तो भाई ये कोई कॉमेडी शो ज्यादा देख लो, उसमें ज्यादा हंसी आती है इंसान को। कोई मज़ाहिया फिल्म देख लो जाके।
تو یہ جو میں ہنسا رہا ہوتا ہوں نا, یہ ہنسانا برائے ہنسانا مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے ہلکے پھلکے رکھ کر بات دل میں اتار دی جائے, ہلکے پھلکے انداز میں. کیونکہ آج کل اکثر خطیبوں کی زبان اتنی گاڑی ہوتی ہے, اردو اتنی مشکل ہوتی ہے, وہی پبلک کے سمجھ میں نہیں آتی. پھر وہ ایسا ڈرونی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. ایک تو گھر میں ویسے ہی ٹینشن میں, پھر مسجد میں آ کے بھی ٹینشن, ٹماٹر خریدنے گئے وہاں بھی ٹینشن. اب ٹماٹر تو ہر کھانے میں ڈلتا ہے نا. وہ سبزی لینے گیا ٹماٹر, وہ قیمت سن کے ٹینشن, پیٹرول ڈال رہے تو اس میں ٹینشن, اور کراچی میں تو سڑکوں کی الگ ٹینشن. بیان میں پہنچنا تھا, آدھے گھنٹے کا راستہ تھا, وہ سڑکوں کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ لگا, تو اس کی الگ ٹینشن. تو میں یہاں بھی اگر جہنم کی وعیدیں سنانا شروع کر دوں گا تو لوگ تو مر جائیں گے بیچارے ٹینشن سے نا. تو میں کہتا ہوں یہاں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں. میرے جب پہلے بیانات ہوا کرتے تھے, جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں, تو جب میں 20-22 سال کا تھا نا, اس وقت جو میں بیان کرتا تھا بڑے جذباتی, رولانے دھلانے والے, جہنم, اور وہ بس لوگ بھی روتے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا ہم نے کہا یار آرام سے, لوگ بیچارے نا ویسے ہی بڑی ٹینشن میں ہیں. جب سے شادی ہوئی تو پتہ چلا لوگ کتنی ٹینشن میں ہیں. اس وقت ہم بچے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹینشنیں ہوتی کیا ہے نا. شادی ہوئی تو بھائی یار بہت ٹینشن ہے لوگوں کو. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات سمیٹوں. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, قرآن کہہ رہے آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہیں, سب سے بہترین. تو کیا مطلب آپ بائی نیچر سب سے اچھے ہیں, لہذا آپ کو جہاں غصہ آنا چاہیے آتا ہے, اور جتنا آنا چاہیے اتنا ہی آتا ہے. جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نہیں آتا. جہاں غصہ آنا چاہیے لیکن برداشت کرنے کا حکم ہے, وہاں آپ کو غصہ آتا ہے مگر آپ برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں, یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے نا وہاں سے لینا پڑے گا. ہم گوروں سے لے رہے ہیں یہ چیزیں بھی, یہاں مار کھا رہے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں وہ سکھا رہے ہیں اچھے اخلاق. تو معاملہ کیا ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ ہم فلموں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں کہ ہیرو ہیروئن سے کتنی تمیز سے بات کرتا ہے, اس کے لیے جان دے دیتا ہے. پرسوں ہمارے کسی دوست نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی مجھے کہ ایک صاحب کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گئے. اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں پاگل ہوا ہے یا ویسے ہی کسی نے بنا لیا ہے. اس کی پرانی تصویریں دکھائیں کہ دیکھو کیسا ہینڈسم لڑکا تھا, اور کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو کے بیچارے کا کیا حال ہو گیا. تو نیچے لوگوں نے بہت ترس کھایا ہوا, ہائے سچے عشق کی تو اس زمانے میں قدر ہے ہی نہیں. یہ بھی لکھا ہوا تو لوگوں نے, سچی محبت کی تو قدر, یعنی اس کی جو گرل فرینڈ ہوگی اس کو تانے دے رہے ہوں گے, اتنا سچی محبت کرنے والا آدمی تم اس کو چھوڑ کے چلی گئی. تو سچی محبت کی تو معاشرے میں قدر ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ عبرت, اگر یہ واقعہ سچا ہے, واقعی کوئی پاگل واگل ہوا بھی ہے, یوٹیوب کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کہ ویورز بڑھانے کے لیے کچھ بھی کوئی بھی پاگل کرائے پہ لیا یا کوئی عقل مند کرائے پہ لے کر پاگلوں جیسا بنایا. ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو میں بتاؤں گا نہیں, پھر وہ جو پرینک جو بنا رہے تھے وہ بولیں گے مجھ سے آپ نے ہمارا راز فاش کر دیا, میں علامتیں نہیں بتاؤں گا اس کی. تو ایک وہ پرینک چل رہا تھا, مجھے نہیں پتا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. ہم لوگ تو گاڑی میں آ رہے ہیں, تو ہمیں کہا نکلو یہاں سے, نکلو یہاں سے. ہم نے کہا کیوں نکلے, کہہ رہے پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی پروگرام چل رہا ہے, ابھی عصر کے بعد کی بات ہے. تو میں نے دیکھا ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے, ادھر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, کوئی پرینک چل رہا ہے, مذاق. تو میں نے کہا یار یہ تو جس کے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جب کیمرہ نظر آ رہا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا. یعنی پرینک کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح کیا جائے, وہ سمجھے کہ حقیقت ہے, بعد میں اس کو کیمرہ دکھایا جائے نا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. یہی ہوتا ہے نا, اٹ از کالڈ پرینک. لیکن میں نے کہا یہ تو پرینک کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے. کیا خیال ہے, جس کے ساتھ ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یار اتنا بھی دھوکہ ہوتا ہے, دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جس کے ساتھ ہم یہ مذاق کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو, لیکن حقیقت میں اس کو بھی پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو وہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے, وہ بھی یہ شو کر رہا ہے جیسے مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو دھوکہ ہے نا, یہ تو جھوٹ میں آتا ہے بھائی. کیا ہو گیا بھائی, یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے کہ پبلک کو آپ دیکھو. ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں پبلک کو بتا کے ایکٹنگ کی جائے کہ میں کوئی سچی, میں واقعی ایکٹنگ کر رہا ہوں. یہ ہے تو ایکٹنگ, مگر کم از کم جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا اس میں. بھائی آپ نے سب کو بتا دیا ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کر ایکٹنگ رہے ہو لیکن دنیا کو یہ شو کر رہے ہو کہ یہ ایکٹنگ نہیں ہے, یہ سچی مجھ, یہ جھوٹ ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کذاب ہے, جھوٹا ہے.
तो उलमा कहते हैं कि इससे वो झूठ मुराद है जिसको लोग सच समझ रहे हों। अगर कोई फर्जी किस्सा लोगों को सुनाया जाए और लोग उसको फर्जी किस्सा ही समझ रहे हो, जैसे हिकायतें हैं सुनाते हैं इबरत के लिए, वो चींटी का किस्सा सुना दिया, शेर वाला लतीफा सुनाया था ना मैंने, सुना दूं दोबारा, कि एक शेर जो है उसकी शादी होने वाली थी। ये जहां से मैंने बयान छोड़ा है ना वहां से शुरू करना है, ऐसा ना हो किस्से में कहीं दाएं बाएं ना निकल जाए हम। शेर की शादी होने वाली थी तो उसने लोमड़ी को कार्ड बांटे और बोला कि मैं जंगल का बादशाह हूं, मेरी शादी हो रही है, कोई घटिया खानदान का कोई फर्द नहीं आना चाहिए, मेरी इंसल्ट होगी। जंगल में जो अच्छी नस्ल के जो जानवर है ना, आला खान, चीता आ जाए, भेड़िया आ जाए, हाथी आए, इस टाइप के जो ऊंची खानदान के लोग हैं बारात में वो आने चाहिए। लोमड़ी ने कहा फिक्र नहीं करें आप। लोमड़ी ने क्या कहा? फिक्र नहीं। लोमड़ी ने कार्ड वार्ड बांटे भाई, शेर को, चीते को और बड़े बड़ी जो खानदानी रीछ, ठीक है ना इस टाइप के लोगों को कार्ड बांट दिए। अब जब बारात जा रही है तो बारात में एक चूहा नाच रहा है, वो बड़े स्टाइल में नाच रहा है ना, वो भी बारात में शामिल हो गया। शेर दूल्हा बना हुआ गजबनाक हो रहा है कि इस नीच घटिया खानदान के घटिया आदमी का शेर की शादी में क्या काम है भाई, इस चरसी को किसने बुलाया यहां पे? और वो सोच रहा है कि मैं लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। सही है ना। उसने लोमड़ी को बुलाया और बोला गजबनाक होकर के मैंने तुम्हें मना किया था कि घटिया खानदान का कोई घटिया आदमी नहीं आना चाहिए। ये चूहे का यहां क्या, और ये नाच कैसे रहा है कमबख्त? या तो चुपके से आया होता, चलो यही नुमाया हो रहा है सबसे ज्यादा। तो लोमड़ी ना चूहे को गिरफ्तार करके ले आई शेर के पास। लोमड़ी चूहे को जब लेकर आई है शेर के पास, तो शेर ने लोमड़ी से कहा शर्म नहीं आती तुझे? मैं जंगल का बादशाह, मेरी शादी में तू नाच रहा है, चूहा हो के नाचता है, शर्म नहीं आती? तो उसने कहा शेर से, बादशाह सलामत, ज्यादा शोर ना मारे, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। अभी पता चलेगा सब शेर ही होते हैं पहले, ये बात की लाइफ है। तो ये क्या, ये कहां से बात आई? हाँ, अब ये किस्सा सच्चा थोड़ी है भाई, ये सच्चा वाकया थोड़ी है। शेर और चूहे ये कौन सा कार्ड बटते हैं? तो बाज लोग इसको भी कहते हैं, हदीस में आता है झूठे किस्से सुनाने वाला कज़्ज़ाब है। तो एक साहब ने मेरे किसी बयान पे भी कमेंट्स किया हुआ था, ये झूठे किस्से सुना रहा है, माज़ अल्लाह, ऐसे फतवा लगाया था, ये भी झूठा है। तो हदीस का मतलब उलमा से समझा करो, खुद से फतवे ना लगाया करो। इससे वो वाकया मुराद है जो वाकया झूठा हो, लोग उसको सच्चा समझें। वाकया की स्टाइल से ही पता चल रहा है कि भाई एक हिकायत बनाई हुई है, फर्जी कहानी बनाई हुई है। बाज दफा ये फर्जी वाकयात इबरत के लिए बताए जाते हैं, कोई मिसाल समझाने के लिए, बाज दफा हंसाने के लिए, बाज दफा कोई सबक होता है, तो वो इसमें दाखिल नहीं है। ये तो हर दौर में उलमा सुनाते रहे हैं। हाँ, वो वाकया हो झूठा, लोग उसे क्या समझ रहे हो? सच्चा, तो उसमें धोखा है। तो ऐसे ही जो प्रैंक है, इसमें बेहयाई वाला तो वैसे ही हराम है प्रैंक, या किसी की ऐसी बेइज्जती करना कि उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाए, ये भी हराम है। और छोटा मोटा मजाक जैसे प्रैंक में होता है, वो इस शर्त के साथ जायज है कि वो वाकई में हो। आपने पहले से जिसके साथ हो रहा है उसको बता दिया कि कैमरा लगा हुआ है, अब वो एक्टिंग कर रहा है, लोग इसको ओरिजिनल समझ रहे होते हैं। तो ये आप लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? लोगों के सामने ये शो कर रहे हैं कि ये हकीकत में है, हालांकि वो हकीकत नहीं होती। तो इस अदाकारी में दूसरी अदाकारी में फर्क है, तो ये नाजायज है। अगर आप शो ये कर रहे हैं कि ये हकीकत है, तो वो हकीकत ही होनी चाहिए फिर। तो मैं आज हैरान हो गया, वो कैमरा लगा हुआ है, मैं वहां से गुजर रहा हूं, मुझे कहना हटो भाई जल्दी से आप लोग, हमारी गाड़ी को ना, वो लोग कह रहे हैं निकलें जल्दी से। क्यों निकलें? पता चला कि किसी के साथ मजाक हो रहा है, इधर इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ है, सारी दुनिया देख रही है, तो जिसके साथ मजाक हो रहा है वो भी देख रहा है। पहले वो परेशान होगा, फिर वो उससे कहेंगे माफी मांगेंगे। तो ये तो ड्रामा है भाई, ये तो जायज नहीं है, ये तो धोखा है लोगों के साथ। तो खैर, क्या बात कर रहा था मैं? तो मैं ये कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, कुरान से पता चलता है कि वो सबसे बेहतरीन। किसी ने पूछा कि आपके अखलाक कैसे थे, तो आपने फरमाया खुलुकुहुल कुरान, आपके अखलाक वही थे जो कुरान है। क्या मतलब? कुरान ने जितने हमें अहकामात दिए हैं, तो तमाम अहकाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो करते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लो आप बाय नेचर कैसे हैं। इस हदीस का मतलब खूब समझें। हर वो शख्स जो कुरान को फॉलो करे, तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसके अखलाक कुरान है, बल्कि वो शख्स के कुरान के अहकाम उसकी नेचर बन जाएं, उसकी फितरत बन जाएं, उसे कहा जाएगा कि कुरान इसकी नेचर बन चुका है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? देखो, एक आदमी वो है जिसका बदनजरी करने का दिल करता है, वो नफ्स को मार के बड़े मुजाहिदे और मशक्कत से नजर झुका लेता है अल्लाह की खातिर, तो हम इसे कहेंगे ये गुनाह से बचा, इसको सवाब मिला।
لیکن ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی سے بچتے 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 اسے برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے. اس کی غیرت کے خلاف لگتا ہے اسے کہ میں غیر عورتوں کو دیکھوں, غیرت کے خلاف لگنے لگتا ہے. جب یہ نیچر بن جائے نا تو ہم کہیں گے اب اس کی یہ بائی نیچر اچھا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی تو ایسی عادت تھی نا, حضرت فرماتے تھے ہماری اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑے تو مجھے جھکانی نہیں پڑتی. فرماتے تھے نظر آٹومیٹک جھک جاتی ہے, ایک لاشعوری طور پہ جھک جاتی ہے. اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھائی کیوں کسی کی بہن بیٹی کو کسی عورت کو دیکھیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو بائی نیچر اچھا بنایا ہے, وہ بدنظری کر کر کے نا اپنی آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے ہر شخص کی آنکھوں میں ایسا اسپرنگ لگایا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا تو وہ اسپرنگ آنکھوں کے خود بخود نیچے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نا گندگی کو دیکھ دیکھ کے اپنے اسپرنگ کو کیا کر دیتے ہیں, خراب. دیکھو شراب پہلی دفعہ ہر ایک کو بری لگتی ہے, بائی نیچر بری ہے شراب. شراب پیتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن پینے والا پی پی کے اپنی نیچر کو خراب کر دیتا. پہلی دفعہ زنا کرنا بہت مشکل ہے, ضمیر ملامت, دل چاہنا ایک الگ چیز ہے, لیکن دل کی چاہت کے باوجود ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے کہ انسان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیچھے ہٹ. دیکھو کہیں کھانا رکھا ہوا ہو, آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانے کا دل تو چاہے گا لیکن ساتھ ساتھ ضمیر آپ کو روک دے گا. آپ کہے گا یار یہ میں کسی کا نوالا کیوں کھاؤں, تو کوئی بات نہیں بھوکا رہ لے گا نا وہ. لیکن آپ نے کھا لیا تو ایک وقت آئے گا کہ چوری کے کھانے میں آپ کو زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر حقیقت ہے غریب کے منہ سے نوالا چھین کے کھانا اور مزہ آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک مالدار آدمی ہے, اس نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا, جس کو 2 وقتوں سے کھانا نہیں ملا, کسی نے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا. اب اس مالدار کو پتا ہے یار مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے لیکن میرے پاس گھر میں کھانا موجود ہے, تو دل تو اس کا بھی چاہے گا کہ ابھی کھا لوں, لیکن کھائے گا یہ, کہے گا یار یہ 2 دن کا بھوکا ہے, اس کا نوالا چھین کے میں کھاؤں, میرے گھر میں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. لیکن اگر یہ مالدار اپنے ضمیر کو کچل دے, غیرت سے اٹھنے والے جذبات کو کچل دے اور اس غریب سے نوالا چھین کر کھائے, تو پہلی دفعہ تو بہت برا لگے گا اس کو, یار کیا کر رہا ہوں, اتنا کھاتا پیتا آدمی, مجھے تو چاہیے تھا میں اس کو کھلاتا. لیکن پھر بھی جب بار بار وہ کھائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کروڑ پتی ہو کے بھی غیرت ختم ہو جائے گی. بلکہ پھر اس کی اخلاق جو ہے نا یہ اچھے ہونے کے بجائے گندے ہو جائیں گے. پھر اس کو نوالا چھین کے کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ حق حلال کی کمائی میں نہیں آئے گا. تبھی تو دیکھو نا یہ جو کرپٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں, ایک سیاستدان نے بتایا کہ اس نے 2 کروڑ زکوٰۃ کا مال کھایا ہے بینکوں سے. ارے تو اربوں روپے کا مالک ہے یار, تو کچھ اور کھا لیتا ہے بھائی, ٹیکس چوری کر لیتا یا کچھ اور اسمگلنگ کا مال کھا جاتا, وہ بھی غلط ہے کہ کھانا نہ شروع کر دیں, لیکن کم از کم زکوٰۃ جو بیچارے غریبوں کا چولہا جس سے جلتا ہے وہ کھاتے ہوئے تو انسان میں کچھ شرم آتی ہے نا. تو ہم تو ایسی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں یار ان میں غیرت ختم ہو گئی. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے شروع سے نوالے کھا کھا کے نا اپنے آپ کو غیرت لیس بنا دیا ہوتا ہے, لہذا ان کو مزہ اس زکوٰۃ کھانے میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ ہدیے میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ان کو, کہ گفٹ میں لا کے دے دینا ان کو 1 کروڑ روپے, ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. کسی کے منہ سے نوالا چھین کے کھائیں گے اتنا اس دن سکون سے سوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کو میں نے ذرا ڈیفائن کیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں کہ آدمی اندر سے کیا بن جائے, اچھا بن جائے. برے اخلاق ہوتے ہیں آدمی اندر سے کیا ہو جائے, خراب, اندر سے. اب آپ اپنے آپ کو نا اس پہ پرکھ کے ہر آدمی پرکھ سکتا ہے. کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے نوالا لے لوں, تو یہ اس کی علامت ہے, کیا ہے یہ, برے اخلاق. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کاش یہ گاڑی میرے پاس آ جائے, تو یہ اندر سے کیا ہے, آپ بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. پھر چاہے آپ جتنے محبت سے بات کریں اس سے, جتنے اچھا, بھائی آپ کے تو دل میں حسد ہے یار, چاہ رہے ہو کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. کسی کی اچھی شکل دیکھی, آپ کا دل چاہتا ہے اللہ نہ کرے اس کے منہ پہ تیزاب گر جائے اور میں اس سے زیادہ اچھا لگ جاؤں. بعض خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اندر کیا ہے, اندر فالٹ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے میں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, کسی کو نہ کھلاؤں, یہ کیوں آتے ہیں میرے گھر میں, مہمان کیوں آ جاتے ہیں, کم بختوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, میری بہن کیوں بیمار ہو گئی یار, ابھی تجھے ڈینگی ہونا تھا, سارا خرچہ میں ابھی اب سعودیہ سے نیا آیا ہوں, تازہ پیسے کما کے آیا ہوں, کم بخت یہ بیمار ہو گئی, اب اس پہ خرچ کرو. ایک صاحب کے کیا ہوا, ان کو ان کی کمپنی سے نا خلافت توقع بونس مل گیا. ایک کمپنی میں نا ان کو کیا, بعض دفعہ باس کا کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے اس کو, تو بعض دفعہ ایسی گریوی میں ڈبل تنخواہ دے دی. اب ڈبل تنخواہ دی ہے تو انہی دنوں میں ان کا بچہ بیمار ہوا, وہ جو ڈبل والی تھی نا اضافی, وہ اس پہ خرچ ہو گیا.
तो मुझे कहने लगे यार पहली दफ़ा बोनस मिला था, वो बच्चे पे क्या हो गया खर्च। मैंने कहा भाई अच्छी सोच होती तो आप यूं सोचते, अल्लाह का इतना बड़ा फजल हुआ कि जिस वक्त बच्चा बीमार हुआ ना उसी वक्त अल्लाह ने बोनस दिला दिया, इजाफी खर्चा नहीं करना पड़ा। तो ये सारी सोचें जो है ना, ये सब आपके अखलाक की क्या करती हैं, अक्कासी। तभी अच्छे अखलाक वाला खुश रहता है, वो हर चीज को पॉजिटिव देखता है, बुरे अखलाक वाला नेगेटिव देखता है। हमारे यहां तो बस अच्छे अखलाक कहते हैं थैंक यू सारे दिन मुस्कुरा के बात करना। ओ भाई ये सारी चीजें अंदर की चेंज होंगी, पूरा डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, सही है ना, इंजन पूरा चेंज होगा तो जाके अच्छे अखलाक होंगे। सिर्फ तमीज से बात करना सीख लेना ये कोई कमाल नहीं है, अगरचे ये भी बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन असल चीज ये नहीं है। असल तो अंदर से ठीक करो। और अंदर से ठीक कैसे होगा, ये पहले मैं अंदर से ठीक होना किसे कहते हैं इसको और जरा डिफाइन कर दूं, फिर मैं अंदर से ठीक होने का तरीका बताऊंगा। भाई देखो गाड़ियां खरीदते हैं ना, ऊपर से तो बड़ा चमकाया हुआ होता है, तो खरीद लेते हैं उसकी चमक को देख के कि गाड़ी के अखलाक बहुत अच्छे हैं, बड़ी मुस्कुरा के बात कर रही है। भाई जो गाड़ी में कलर उखड़ा हुआ हो जगह जगह से, तो वो ऐसे ही लगता है जैसे बदतमीजी से बात कर रही है, लेकिन देखने में चमक रही हो गाड़ी तो ऐसे ही लगता है जैसे मुस्कुरा के। तो क्या महज इस बेस पे गाड़ी खरीद लेते हैं? बोलो ना भाई, नहीं खरीदता कोई भी। मैकेनिक को लेके जाएंगे, यार चेक कर भाई, वो स्टार्ट करके पहले आवाज चेक करता है, ये 2-3 अलग से आवाजें कहां से आ रही हैं। इंजन की तो समझ में आती है, 2 आवाजें और आ रही हैं। फिर जब गाड़ी चलेगी तो इंजन की गायब और बाकी आवाजें हमें तो बहुत तजर्बे पुरानी गाड़ियों के भाई, बहुत तजर्बे। मैंने एफएक्स खरीदी थी सबसे पहले ना 40,000 की किस्तों पे। हमारे एक दोस्त की गाड़ी थी, वो मेरी बाइक चोरी हो गई। मैंने कहा यार मैं पहले ट्राई करता हूं, क्योंकि ज्यादा बहुत अच्छी ड्राइविंग उस वक्त मुझे आती नहीं थी, कई साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा ट्राई करने के लिए तजर्बा किस पे करो, एफएक्स पे। तो हमने भी 40,000 में वो भी किस्तों पे खरीद ली। हमने कहा चलो तजर्बा इस पे करते हैं, फिर थोड़ा अच्छे पे कोशिश करेंगे, इसको बेच के कुछ पैसे गुड़ मिला के और मीठा ले डाल दिया उसमें, फिर थोड़ा सा उसको बेच के गुड़ मिला के। तो एफएक्स पे जब मैं आया तो मैं जब गया तो उसकी छत पिचकी हुई थी ना, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है गाड़ी की छत ही। उसने कहा कोई मसला नहीं है, यूं हाथ मारा सेट हो गई। उसने कहा डेंटिंग पेंटिंग का कोई काम है ही नहीं, बेहतरीन गाड़ी है। तो इंजन वाइज बहुत अच्छी है, बार बार वो कहते हैं इंजन टाइट है। तो जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो मैकेनिक को लेके जाते हैं, वो मैकेनिक उसको अंदर से चेक करता है, भाई ये अंदर से ठीक है या नहीं है, मॉडल कौन सा है, बहुत पुराना मॉडल है तो इसका मतलब अंदर से ठीक नहीं हो सकती। बाकी ऊपर की चीजों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती यार, वो तो एक जो है ना वो एक जगह से टचअप है तो कोई बात नहीं, एक स्प्रे आपने मारा है दूसरा हम कर देंगे उस पे। नंबर प्लेट देखी जाती है, चेक करवाया जाता है कि यार ये गाड़ी का नंबर यही है, इंजन चेचिस मैच कर रहे हैं आपस में, नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं है कि चोरी की गाड़ी हो या सिरे से जाली डॉक्यूमेंट्स हो, ये सब चीजों को। तो इसी तरह इंसान को जब क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा तो अल्लाह फरमाते हैं वजा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जन्नती वो है जो सलीम दिल के साथ अल्लाह के सामने आए। सलीम किसे कहते हैं? सलामत वाला, यानी बुराइयों से पाक दिल अल्लाह के सामने लेके आएगा। मैं समझा पा रहा हूं? बुराइयों से पाक दिल, ऐसा दिल साफ सुथरा शीशे की तरह चमक रहा हो दिल। हमारे यहां जाहिर की अहमियत ज्यादा है, अल्लाह के यहां अंदर की अहमियत ज्यादा है। अंदर क्या है आपके? तो दिल होना चाहिए सलामत, सलामत, महफूज। सलामती का माना महफूज हो। जब हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती, क्या मतलब? अल्लाह आपको आफतों से सलामत रखे, महफूज रखे। कहते तुम सलामत रहो ता क़यामत रहो, क्या मतलब? आफतों से, परेशानियों से महफूज रहो। तो सलामत, सलीम का मतलब होता है आफतों से महफूज। ये नाम भी रखा जाता है इसी नीयत से कि भाई अल्लाह इसको बलाओं से, मुसीबतों से क्या रखे? महफूज रखे। तो वजा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह फरमाते हैं जो अपने रब के पास क़यामत के दिन ऐसा दिल लेकर आएगा जो बुराइयों से पाक होगा, तो ऐसा शख्स जन्नती है। तो ये है अब बुराइयों से पाक होने में क्या है कि भाई अंदर हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, नाशुक्री ना हो। जो आदमी नाशुक्रा होता है वो भी बुरे अखलाक वाला होता है। जो नाशुक्रा होता है वो क्या होता है? बुरे अखलाक। अब बताओ एहसान सबसे ज्यादा किसका है? वालिदैन का होता है ना, असातिज़ा का, वालिदैन का एहसान होता है। तो इसलिए अगर उनसे अच्छे अखलाक से बात नहीं करता तो इस्लाम कहता है कि यह आदमी एहसान फरामोश है। भाई वो तुमसे मुआवजा थोड़ी मांग रहे अपनी खिदमत का, जो खिदमत वालिदैन ने की है वो तो क़यामत तक आप उसका बदला नहीं दे सकते। शुक्र का तकाज़े, बात तो तमीज से कर लो।
लहजा तो मीठा कर लो। अगर आप बाप से तमीज से बात नहीं करते, सारा दिन दोस्तों को गले लगाएं, सारा दिन मीठी मीठी बातें करें उनसे, अल्लाह की नजर में आप नाशुक्रे हैं कि जिसका सबसे बड़ा एहसान था आपने उसकी एहसान फरामोशी की है। लिहाजा आप अंदर से अच्छे नहीं है, अंदर से क्या है, बुरे हैं। बेशक मुंह से आपके फूल निकलते हो दूसरों के सामने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक चूंकि सबसे अच्छे थे, इसलिए आपका लबो लहजा सबसे ज्यादा मीठा अपने घर वालों के साथ था। समझ में आ रही है बात? अम्मी देखो, बीवी अपने शौहर की तारीफें इतने आराम से नहीं करती। कितना अच्छा आदमी हो, बेगम यही कहेगी टेढ़ा मेढ़ा आदमी है ये, उमूमन सिवाय उन औरतों के जो मेरा बयान सुन रही हैं। इसी वजह से याद रखो, ये जो खवातीन बाज़ दफ़ा अपने शौहरों पे ये लगा रही होती हैं, ये बुरा है, या ऐसा है, यूं है, तो फलाना है, तो लोग फौरन ना कमेंट शुरू कर देते हैं कि यार ये तो इतना नेक समझते थे तो ऐसा आदमी निकला। तो जब तक दोनों तरफ की बात ना सुना करो, किसी पे फतवा ना लगाओ। इसी तरह मर्द अगर बीवी पे इल्जामात लगा रहा है, बाज़ दफ़ा ये होता है जब मियाँ बीवी में इख्तलाफात होते हैं ना हमारे मुआशरे में, तो हर आदमी को अपनी इज्जत बचाने की फिक्र होती है, क्योंकि उंगलियां दोनों पे उठती हैं कि दोनों इकट्ठे क्यों नहीं रहे। तो जाहिर है नहीं रहे तो ऐन मुमकिन है इनमें एक गलत हो, तो हर आदमी अपनी सफाई चाहता है। वो कहता है ये गलत, वो कहता है ये गलत, तो उसमें ना लोग फिर इफरात व तफरीत का शिकार हो जाते हैं। तो अव्वल तो ये कि किसी को गलत कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर फतवा लगाना भी है तो एक तरफा बयान सुन के कभी भी फैसला मत करो। ये बहुत बड़ी गलती दीनदारों से भी होती है। कोई भी मीडिया पे आके बयान करना शुरू कर देना, कोई औरत आएगी अपने मियां के खिलाफ, लोग भर भर के उसके ऐसा आदमी है, ऐसा जालिम आदमी। ओ भाई, क्या दलील है कि ये सच बोल रही है? जब किसी का देखो, किसी का किसी से झगड़ा होना तो उसके खिलाफ इस्लाम गवाही कबूल नहीं करता। मैंने अगर इन्होंने अगर मेरे पैसे लेके खा गए, ये साजिद भाई बैठे हुए, नहीं अल्लाह न करे खाए नहीं है, और इन्हें खा भी नहीं, अगर ये खा ले तो निकाल भी नहीं सकते हम इनसे, इसलिए ऐसे आदमी को तो कर्जा देना ही नहीं चाहिए। फर्ज करो इन्होंने पैसे लेके खा गए मुझसे, अब क्या है कि एक आदमी आया और अदालत में गया और अदालत में कहता है जाके कि भाई ये आदमी मेरा फलां से झगड़ा है और मुफ्ती तारिक मसूद साहब गवाही देंगे कि ये आदमी गलत है और मैं सही हूं। तो अदालत मेरी गवाही को कबूल नहीं करेगी। अदालत कहेगी इनका तो पहले से आपस में क्या चल रहा है, इस्लाम में हुक्म है ये कि इनका तो पहले से झगड़ा चल रहा है, इसने तो इसको बुरा कहना ही है। तो ये उसूल है शरीयत का कि जिसका पहले से किसी से झगड़ा चल रहा हो तो उन दोनों की गवाही एक दूसरे के खिलाफ मोतबर नहीं है। तो इसलिए मियां बीवी के झगड़ों में शौहर बीवी पे इल्जामात लगा रहा हो तलाक के बाद, या औरत लगा रही हो, किसी की बात ना सुनो। बोले भाई आपका आपस का मसला है, हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत, अलहदगी हो गई, आप कहीं और शादी करो, उसको बोले तुम कहीं और शादी करो। एक दूसरे पे इल्जामात लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर लगाना है, तहकीक में पढ़ना है, तो फिर दोनों तरफ के बयान सुनो, उसके जवाब में वो क्या कहता है या वो क्या कहती है। यह हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी बुराई फैल रही है कि जिसके हाथ में मीडिया है वो दूसरे को जलील कर देता है। जिसके पास अपनी बात को दुनिया को पहुंचाने का जरिया है ना, बस वो उस जरिए को इस्तेमाल करेगा और मुखालिफ पार्टी का बेड़ा गर्क कर देगा। तो खैर, तो अब देखो कि आम तौर पर मियां बीवी में झगड़ा चल रहा हो ना, खास तौर पे तो तारीफें नहीं करते। और लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं, उन्होंने हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है, हमेशा। हजरत आयशा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे? आपने फरमाया कुरान आपके अखलाक थे, जो जो कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया वो आप किया करते थे। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा भी आपकी ज़ौजा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ करती। तो सबसे ज्यादा अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। तो घर वालों में सबसे पहले बीवी, सबसे पहले तो वालिदैन है, फिर बीवी, फिर बच्चे, फिर भाई और बहन। जितना करीबी रिश्ता होगा उससे उतनी ही तमीज से बात करने का आपको हुक्म है। हालांकि हमारे मुआशरे में जितना करीबी रिश्ता है उतनी ही बदतमीजी से उससे बात होती है, और जितना दूर का रिश्ता होगा उससे चूंकि मफाद होते हैं। भाई ये डॉक्टर साहब हैं, हो सकता है इनसे इलाज कराना पड़े, बड़ी तमीज से बात करेगा डॉक्टर साहब से। ये ताजिर है यार, कभी कर्जा मांगना पड़ सकता है, बड़ी तमीज से बात होगी भाई उससे। ये इलाके का नाजिम है, भाई कोई काम अटक सकता है तो बड़ी तमीज से बात होगी उससे। तो वो समझ रहे होते इस तमीज से बात करने पर सवाब मिल रहा है, सवाब नहीं मिल रहा भाई, इस पे पैसे मिल रहे हैं आपको, समझ रहे हो ना, कर्जा मिल रहा है, सवाब। अब ये मतलब नहीं कि उससे बदतमीजी से बात करना शुरू कर दें नाजिम से, मुफ्ती साहब ने कहा सवाब नहीं मिलता। बात करें तमीज से हर एक से, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, पैसे निकलवाने के लिए
پیسوں کے لیے تمیز سے بات نہ کریں. بعض دفعہ لوگ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے طلاق کا نا, وہ تمیز سے بات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب کا فتویٰ مل جائے. ایکچولی مفتی صاحب دیکھیں نا, آپ تو سمجھدار ہیں,